Hello, my dear students. How are you? That's very great. Okay, today we are going to start a very interesting point, that is a nation's strength. What do you think? What is our nation's strength? क्या है हमारे इंडिया की strength? Wealth, health, or religion, diversity? What do you think? Let's know about the poet, what the poet is saying in the poet Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson, born in 25th May 1803 and died in 27 April 1882, was an American essayist, lecturer, poet. Versatile, right? He is seen as a champion of individualism and a critic of pressures of society on an individual. क्या pressure मतलब उन पे काम करते थे. That's why he was known as champion of individualism or a critic for individualism. He spread his views through dozens of published essays and more than 1,500 public lectures across the United States. He worked hard a lot, right? And he worked it a lot. Okay, this was all about our poet. Now let's see what is he saying in the poem. Let's read about it. Read this poem in which the poet reveals the secret of a nation's success. क्या सक्सेस का सीक्रेट क्या होता है किसी नेशन का, किसी कंट्री का? Let's talk about it. What makes a nation's pillar high and its foundation strong? What makes it mighty to defy the foes that round it throng? So the poet, what the poet is saying in this line, in these lines, basically the poet has used rhetorical questions in these lines, and even he has used symbolic language. He is not using the simple language in his poem. He is using symbolic language. What does it mean? What makes a nation's pillars high and its foundations strong? क्या चीज है जो उसके nations के pillar को, base को high करती है and its foundation strong, और उसके base, उसके foundation को high रखती है, strong बनाए रखती है? तो यहाँ जो poet nation की बात कर रहा है, basically he is comparing nation with a building. ठीक है, एक बिल्डिंग से कंपेयर कर रहा है. जिस तरह से एक बिल्डिंग के पिलर्स को क्या चीज हाई रखती है, कैसे वो पिलर्स हाई बनते हैं, होते हैं, और इवन उसका किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन जो है वो कैसे स्ट्रॉन्ग होता है. सेम एज द पोएट इज आस्किंग अबाउट अ नेशन, अ कंट्री, कि कैसे कंट्री जो है स्ट्रॉन्ग बनती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, उसका सीक्रेट क्या रहता है. What makes it mighty to defy the foes that round it throng? और क्या चीज ऐसी है जो उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है, माइटीफुल बनाती है? टू डिफाई, टू रेसिस्ट, स्ट्रॉन्गली रेसिस्ट, रोकती है किसको? द फोर्स मीन्स द एनिमीज को. दैट राउंडेड थ्रोंग, जो उसके चारों ओर या उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, गैदर्ड हो जाते हैं. ओके, so I was talking about that poet has used rhetorical questions. Rhetorical questions क्या होते हैं? Basically that questions that are not to ask to get the answer. No, that is for making a point, to putting a point, कि अपना एक point रखना, अपनी बात रखने के लिए जो क्वेश्चन किया जाता है, वो आंसर लेने के लिए नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ अपनी बात रखने के लिए, कि स्ट्रेस देने के लिए कि हाँ आप भी सोचते हो क्या ऐसा, मतलब एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, क्या चीज है, वो पोइट सोचता है ऐसा, अपनी पॉइंट रख रहा है, अपनी बात रख रहा है वो सिर्फ, है ना. तो इन द नेक्स्ट स्टेंजा द पोइट इज रिप्लाइंग इटसेल्फ एंड ही इज सेइंग, इट इज नॉट गोल्ड, its kingdoms grand go down in battle shock, its shafts are laid on sinking sand, not on abiding rock. पोइट कहता है कि ये गोल्ड नहीं है, ये गोल्ड नहीं है. पहले उसने क्वेश्चन किया था, क्या किया था कि क्या सीक्रेट है उसका, क्या ऐसी चीज है जो उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है, नेशन को, उसके बेस को, उसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है. So the poet is replying, it is not gold. Gold नहीं है for sure वो.
यहाँ गोल्ड को का मीनिंग पोइट का कहने का है मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो लाइक कॉस्टली लग्जरियस चीजें होती हैं। हम कह सकते हैं अगर किसी नेशन की बात करें तो मिनरल्स हो गए या गोल्ड हो गए, मटेरियलिस्टिक चीजें जो किसी नेशन में टेक्निकली कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो चीजें नहीं है फॉर श्योर। इट्स किंगडम्स ग्रैंड गो डाउन इन बैटल शॉक। अगर किंगडम्स की बात करें तो अगर किसी के पास इतना गोल्ड है या मटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा है किसी नेशन में, तो वो भी बैटल फील्ड में, बैटल ग्राउंड पे इजीली नीचे वो उसका फॉल डाउन हो सकता है, वो नेशन खत्म हो सकता है, चाहे उसके पास कितना भी सामान है, कितना भी टेक्निकली डेवलप्ड है, या फिर कितने भी उसके पास मिनरल्स हैं। इराक, ईरान, इनके भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइव एग्जांपल की। बहुत कुछ है उनके पास भी, उनकी कंट्री में, लेकिन इतने डेवलप्ड क्यों नहीं हो पाया अभी भी? बार बार वो बैटल ग्राउंड में क्यों डिफीट हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ अभी रीजन हमें नहीं पता, लेकिन हाँ फॉर श्योर अगर उनकी मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करें, सो दैट इज नॉट द ट्रू एग्जाम्पल, ट्रू थिंग दैट कैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, राइट? इट्स शाफ्ट्स आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड। ऐसे कंट्रीज जो मटेरियलिस्टिक स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनके जो शाफ्ट्स हैं, उनके जो बेस हैं, वो क्या होते हैं? बने होते हैं सिंकिंग सैंड पे। मीन्स जो सैंड इजीली, मतलब सैंड पे बने हैं तो सिंकिंग, डूब जाने वाले, पानी आया तो वो डूब जाएगा, वो बेस खत्म हो जाएगा, हट जाएगा ना सैंड पे, अगर बेस कुछ बना होगा तो। नॉट ऑन अबाइडिंग ग्राउंड। और इनके जो शाफ्ट्स हैं वो सैंड पे खड़े होते हैं। जैसे कि नेशन को बिल्डिंग से कंपेयर कर रहा है, तो जो वो बिल्डिंग है उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसे संभालने वाले स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके बेस बेसिकली अबाइडिंग रॉक नहीं है, यानी कि ऐसी चीजें जो परमानेंट हो, जो स्ट्रॉन्ग बनाए बेस को, उससे नहीं बनी है, राइट? लॉन्ग लास्टिंग रॉक जो काफी लंबे टाइम तक चलती है, ऐसी रॉक से, ऐसे स्टोन से नहीं बनी है, राइट? नेक्स्ट, is it the sword? As the red dust of empires passed away, the blood has turned their stones to rust, their glory to decay. तो वो नेक्स्ट करता है, कह रहा है कि क्या वो स्वॉर्ड है जो किसी नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है, कि उनके पास पावर है, पावर से भी कोई नेशन स्ट्रॉन्ग बन सकती है? As the red dust of empires passed away, कहता है पूछो उनसे, उन किंग से जिनके किंगडम खत्म हो गए, जिनके किंग्स, जिनके पास बड़ी बड़ी स्वॉर्ड्स थी, पावर थी, वो बिल्कुल जिनकी डेथ हो चुकी है, और उनकी जो डस्ट है वो बिल्कुल रेड हो चुकी है उनके ब्लड से, तो उनके पास भी पावर थी, बड़ी अच्छी अच्छी स्वॉर्ड्स थी, क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ, है ना? वो भी, उनकी भी डेथ हो गई और उनका नेशन, उनके किंगडम खत्म हो गया। द ब्लड हैज टर्न्ड देयर स्टोन्स टू रस्ट। उनके ब्लड जो उनका बह चुका है, जो ब्लड आया उनका, वो बिल्कुल स्टोन में बदल गया है, टू रस्ट। जैसे कि किसी स्टोन स्वॉर्ड जो है उस पर रस्ट हो जाती है, दैट इज यूजलेस ना। सेम एज इफ किंग्स आर नॉट देयर, द नेशन इज ऑल्सो यूजलेस, देयर ग्लोरी टू डिके, और सेम एज देयर ग्लोरी, और उनके नेशन की जो भी ग्लोरी उन्होंने अचीव की थी, दैट हैज गॉन, मीन्स दैट वॉज नॉट परमानेंट, है ना? तो पावर ने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट, एंड इज इट ब्राइट? That bright crown has seemed to nations sweet, but gold has struck its luster down in ashes at his feet. तो वो कह रहा है कि क्या वो प्राइड है? ऐसा प्राइड है? That bright crown has seemed to nations sweet. कि प्राइड क्या है? उनके किसी किंग के का जो क्राउन है, ब्राइट क्राउन है, वो दिखता है कुछ ऐसा कि जो दिखने में तो बहुत अच्छा, नेशन स्वीट, उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके किंग के सिर पे ताज है, क्राउन है, बट गॉड हैज स्ट्रक इट्स लस्टर डाउन। लेकिन गॉड ने उनके क्राउन को एक मिनट में उनकी शाइन को, लस्टर को खत्म कर दिया। इन एशेज एट इट्स फीट, उनके कदमों में गिरा दिया, एशेज में बदल दिया, राख में बदल दिया। Not gold, but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. तो कह रहा है कि ना गोल्ड है
और लेकिन जो men हैं they can मीन्स जो मैन पावर है, जो लोग हैं, या फिर हम कह सकते हैं किसी नेशन के जो सोल्जर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी है, जो मैन है, जो मैन पावर है, कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। वो नेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, वो बना सकते हैं। और ऐसे लोग जो ग्रेट हैं और जो स्ट्रॉन्ग हैं, मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट। और ऐसे लोग जो ट्रुथ के लिए, ऑनर के लिए, उसकी खातिर खड़े हैं, स्ट्रांगली खड़े हैं, एंड सफर लॉन्ग, और बहुत लंबे टाइम तक सफर भी करते हैं। आपने देखा होगा बॉर्डर पे कितना कुछ उनको सफर करना पड़ता है सोल्जर्स को, राइट, है ना। तो ऐसे लोग दे कैन मेक अ नेशन। ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप। ब्रेव मैन जो काम करते हैं comparative to those who are sleeping, who dare while others fly। ऐसे लोग नेशन को बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो डेयर, हिम्मत दिखाते हैं, रेस्ट द अदर्स हु आर फ्ली अवे, जो भाग जाते हैं उनकी बजाय। वो ब्रेव मैन हैं जो नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो डेयर मैन हैं जो नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दे बिल्ड a nation's pillar deep and lift them to the sky। ऐसे लोग, यही जो ब्रेव हैं, जो ट्रुथ और ऑनर के लिए खड़े हैं, डेयर करते हैं, डेयरिंग मैन हैं, वो नेशन के पिलर्स को लिफ्ट, डीप बनाते हैं, नीचे से बेस को अच्छा बनाते हैं और उसे ले जाते हैं स्काई तक, मीन्स उसको पूरा डेवलप करते हैं उनके नेशन को। और फिर वो उसकी जो ग्लोरी है हर जगह फैलती है, हर जगह वो फेमस गेन करता है, फेम गेन करता है, नेम गेन करता है, राइट। सो अल्टीमेटली द पोएट वांट्स टू से इन दीज टू स्टैंजास दैट द पीपल हु आर ब्रेव, हु आर स्ट्रॉन्ग, हु आर डेयरिंग, हु स्टैंड फॉर ट्रुथ एंड ऑनर, they are the real gem, they are the strength of nation। That's all about the poem। So overall I would say yes, for sure poet has used the अगर figure of speech की बात करें तो basically the poet has used only rhetorical questions, है ना, to make his point, to put his point, इसका point of view रखना चाहता था, तो the poet has used rhetorical questions। Okay, so and the rhyme scheme, if we will talk about it, so let's talk about the last word of each line. High, strong, defy, throng. So A, B, A, B. That's same for the full poem. Okay, I hope it is clear to you. Thank you very much. If you not got it, please watch the video again. Thank you. Bye bye.